careers and want to know, in depth about a specific industry. So, we just try and help them to the best of our abilities. Our career guidance cell is actually running a series of such trainings in the month of April. So I'll just, give you a little brief about these trainings. So today, obviously, we have this session on career in commerce. Then tomorrow, on the 14th of April, we have a training on career in dentistry. On the 15th of April, we have a session on career in design. 20th April, there's a session on career in psychology. 21st April on career in Ayurveda. 22nd April is a session on career in mathematics. 27th April, career in advertising. And 28th April, which happens to be the last training of this lecture series, we have a session on career in finance. You can get more details on these and a lot of other trainings and also find out more about PMA on the website. So as I just mentioned, all these trainings, you can see that these trainings are in different kinds of fields and the faculties are all experts in their respective industries. So you will hear and learn from only the best. So I'd like to basically request you and also urge you to spread the word and, try to forward this brochure of career guidance series to your friends, your families, students and parents who you think can benefit from these sessions, because our ultimate motto is basically to reach out to maximum number of people so that they can increase their knowledge in all these different fields and take an informed decision when they make a career choice. I would also like to take this opportunity to thank our various faculties who have come forward for this cause of spreading this awareness. And a special thanks to our COE director, Professor Amol Randide, and Mrs. Manjusha Bhaskarwar, who is a career counselor, who are both working tirelessly to make these lecture series possible. So thank you to all of you. I now quickly introduce our today's faculty, who I have the pleasure of knowing personally. A very sharp chartered accountant specializing in indirect taxation and a very quirky professor at the same time. CA Shubham Mantri passed his chartered accountancy exam in 2016 and has been practicing since then. He was instrumental in implementing GST for industries across sectors. He graduated from Symbiosis College of Arts and Commerce. He is currently consulting FMCG giants and leading housing finance company and other startups as well in indirect taxation. Besides being an expert in his field of commerce and accounts, he's also a professor. He has been teaching for the last 5 years and has taught more than 1,500 students from commerce and non-commerce background. Currently, he's heading Ankuram Educare Commerce classes. They are based in Pimple Saudagar in Pune. And he has a very special way of teaching his students. And I can, assure you that you or your, kids will never get bored in his lectures, because I always look forward to his presentation at the common forums that we attend. So I'll let CA Shubham Mantri do the rest of the talking for the session. Unless you have any questions that you have in between, I'll keep diverting that to him. I would request you to pay attention to his session and ask as many questions as you have to clear all your doubts. But if at all you would like to know more in depth about this field or any other field, we have also arranged a one-to-one session physically at the PMA office on 29th of April with the respective faculty. So if you want to come down there and have a face-to-face discussion with the faculties, I'm sure that they'll be happy to help you there as well. So Shubham, it's over to you now. Okay. Yeah, thanks a lot, Shilpi. Thank you for the kind words. So yes, guys, हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश में ही बात करेंगे. So it is comfortable for everyone. So basically careers in commerce. जब भी हम लोग कॉमर्स सोचते हैं ना, जब भी हम लोगों ने कॉमर्स सोचा है, तो हमेशा ऐसा लगता था कि जैसा हमारे इधर होता था कि जो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में वो साइंस लेते थे, जो थोड़े एवरेज है वो कॉमर्स लेते थे, और जो बिल्कुल ही एकदम कुछ नहीं पढ़ रहे वो आर्ट्स लेते थे. बट ओवर द इयर्स ये चीज अब चेंज हो चुकी है. ठीक है, हमको पहले क्या लगता था कि कॉमर्स इज ओनली फॉर सीए सीएस, बाकी बीकॉम वगैरह में तो कुछ हो नहीं पाता है हमारा. पर अब ऐसा नहीं है. देयर आर मेनी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज दैट यू कैन डू. सिर्फ अभी इंजीनियरिंग करके आप आउट ऑफ इंडिया नहीं, आप कॉमर्स में भी आउट ऑफ इंडिया जा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. देयर आर मेनी मोर प्रोफेशनल कोर्सेज नाउ. और जैसे जैसे इंडिया डेवलप होते जा रहा है वैसे वैसे सब चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आने वाली है. सो
अभी भी अगर मैं बोलना चाहूँ तो as a economy, India is short of 5 to 10 lakh chartered accountants. As a economy, India is short of 5 to 10 lakh chartered accountants. तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इतनी कमी है तो आप सोचिए कि कॉमर्स ग्रेजुएट्स की कितनी कमी होगी. ठीक है. सो नाउ द वन थिंग, करियर्स इन कॉमर्स. सो कॉमर्स में जो करियर्स है वो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं into थ्री पैरामीटर्स. सबसे पहला एक अंडर ग्रेजुएट, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस रहता है हमारे यूजी कोर्सेज जो हम लोग बोलते हैं. उसके बाद में इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, जिसके अंदर साथ साथ आपको ग्रेजुएशन उसके साथ आपको मास्टर्स का डिग्री भी मिल जाता है. और तीसरा आता है प्रोफेशनल कोर्सेज. तो ये जितने भी हमारा कॉमर्स है ये पूरा इन तीन चीजों में हम लोग एक ब्रॉडली उसको डिवाइड कर सकते हैं. नाउ अल्टीमेटली सबसे पहले तो कॉमर्स किसको चूज करना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले हम लोग आएंगे कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स. तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने में बहुत अच्छा है तो साइंस करवा लो, इंजीनियरिंग करवा लो, पढ़ने में थोड़ा एवरेज है तो कॉमर्स करवा लो, और नहीं तो फिर आर्ट्स करवा लो. ऐसा कुछ नहीं है अभी. सो द पर्सन हु लाइक्स नंबर कैन डू कॉमर्स. एनी पर्सन हु लाइक्स टू डील इन नंबर्स, जिसको बहुत हिसाब किताब रखना अच्छा लगता है, not necessary maths, I am not talking about maths, I am talking about numbers. जिसको numbers में खेलना बहुत पसंद है, he can obviously go for commerce. जिसको हो सकता है कि बाकी चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, how to manage people, how to manage things, and how to run a business. If you have to run a business, yes, you can take commerce. ठीक है, तो इन लोग कॉमर्स ले सकते हैं. नाउ कॉमर्स में क्या क्या चीजें हो सकती है. सो फॉर ऑब्वियस रीजन कॉमर्स का एक चीज बहुत अच्छा है कि अगर आप 11th-12th साइंस भी लेते हो तो यू कैन गो टू द कॉमर्स. दिस इज वेरी गुड थिंग कि आप 11th-12th साइंस ले लो. साइंस नहीं हो पा रहा है या किसी वजह से साइंस में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है तो आप कॉमर्स में आ सकते हो 12th के बाद भी. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन कॉमर्स. बट कॉमर्स से आप साइंस में नहीं जा सकते हो बिकॉज साइंस के कुछ अपने लिमिटेशंस है. So now there are engineers who are chartered accountants now. So likewise. So commerce में undergraduate में कौन से courses आते हैं. तो let us start with सबसे पहले bachelors of commerce. एक bachelors of commerce करके कोर्स है. नॉर्मल कोर्स बीकॉम हम लोग बोलते हैं. इट इज कॉमर्स का डिग्री, एक बैचलर्स. उसके अंदर आपको अकाउंट्स के बेसिक आ जाते हैं, टैक्सेशन के बेसिक आ जाते हैं, कॉस्टिंग के बेसिक्स आ जाते हैं. ये सब बेसिक्स आते हैं. तो अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो यू हैव टू डू विद इन अ गुड कॉलेज, गुड यूनिवर्सिटी. प्रोबेबली श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अगर ऐसा कोई कॉलेज मिलता है आपको तो बीकॉम का वैल्यू है. बट आई विल बी ब्लंटली ऑनेस्ट कि अगर हम लोग पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम करते हैं तो हमारे बीकॉम को बहुत कम वैल्यू है, हमारे बीकॉम को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है. सो इफ यू हैव टू डू बैचलर्स इन कॉमर्स, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड कॉलेज. इनफैक्ट टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ इंडिया. अगर नहीं तो फिर आप बीकॉम मत कीजिए. ठीक है, आई विल बी ब्लंटली ऑनेस्ट बिकॉज ग्राउंड रियलिटी यही है कि अगर हम पुणे यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा 8,000 10,000 ऑन प्लेन बीकॉम बेसिस हमको जॉब मिलता है. एंड एज वी ऑल नो, मुंबई एंड पुणे जैसी सिटी में सर्वाइवल ऑन 8 to 10,000 इज नॉट इनफ. ठीक है, और एक्सपीरियंस लाते लाते बहुत टाइम लग जाएगा. तो बीकॉम के अंदर 3 इयर्स रहते हैं. फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकंड ईयर बीकॉम एंड थर्ड ईयर बीकॉम. बीकॉम यू कैन डू फ्रॉम एनी कॉमर्स कॉलेज. उसके अंदर आपको स्पेशलाइजेशंस के लिए सब्जेक्ट रहते हैं. मास मीडिया हो गया, बैंकिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया. तो ये जितनी 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें आप लोग देख सकते हो आपको क्या पसंद है क्या नहीं. बीकॉम में सिर्फ फर्स्ट टर्म में मैथ्स कुछ कॉलेजेस मैंडेटरी करते, कुछ कॉलेजेस मैंडेटरी नहीं रखते. बट बीकॉम का जो मैथ्स है वो 12th से 90% इजी है. तो इफ द स्टूडेंट डजंट लाइक, जैसे मेरे साथ होता था, मुझे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था. मुझे अभी भी याद है कि मैंने रट्टा मार मार के, रात में रट्टा मारता था. मुझे आंसर्स याद थे बट मुझे ये नहीं पता था कि वो डिराइव कैसे करना. इंटीग्रेशंस बोली, डेरिवेटिव बोली, मुझे आंसर्स पता था कि क्या आंसर आने वाला है. तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको मैथ्स से नफरत है या मैथ्स पसंद नहीं आता है या बहुत कोशिश भी करता है लेकिन हमको मैथ्स ध्यान में नहीं आ रहा, तो यस, ही कैन गो फॉर बीकॉम.
बीकॉम का मैथ्स बहुत इजी है और उसमें भी बहुत कम कॉलेजेस है जो फर्स्ट टर्म मैंडेटरी करते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है कि आपको मैथ्स लेना ही है। तो बीकॉम 3 इयर्स, FY बीकॉम, SY बीकॉम, TY बीकॉम प्लस बीकॉम में ना, आई विल बी ब्लंटली ऑनेस्ट, आई विल बी रिपीटिंग इट अगेन, कि अगर आप बीकॉम पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी या ऐसे ही कोई यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो इट वोंट हैव एनी यूज, हमको कोई उसका यूज नहीं रहेगा। इट इज एज गुड एज अ पेपर एज ऑफ नाउ। उससे अच्छा आप कोई डिप्लोमा कोर्सेस कर लीजिए, 12th के जस्ट बाद आपका जॉब लग जाएगा, आपको एक्सपीरियंस, जब तक आप बीकॉम पास होगे तब तक आपको उतना एक्सपीरियंस हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज BBA। तो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज फॉर द वन who have to start ups या who have to carry on their family business, या उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में जाना है, तो दैट इज फॉर देम। BBA is just like commerce, FY, SY, TY, बट BBA में एक अच्छी चीज ये है कि यू लर्न हाउ टू मैनेज। बीकॉम में यू आर ऑन द मैकेनिकल पार्ट, यू आर ऑन द एग्जीक्यूशन पार्ट, BBA में यू आर ऑन द मैनेजमेंट पार्ट। तो दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट BBA। बीकॉम में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थोड़े ज्यादा है, BBA में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थोड़े कम है। सो बीकॉम एंड BBA में यू विल बी एट द मैनेजमेंट पार्ट एंड वी ऑल नो। सी, मैं बेसिकली आप लोगों को कॉमर्स का एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि कॉमर्स में क्या होता है एग्जैक्टली। सो हम कोई भी अगर फील्ड लेते हैं तो फील्ड में स्ट्रक्चर कैसा जाता है, द पिरामिड इज लाइक दिस, this is the top level, this is the middle level, and this is the bottom level. So the authorities flows from here to here and the accountability flows from bottom to the top. So see, authority कहाँ से flow हो रहा है, authority flow हो रहा है हमारा यहाँ से top से bottom तक, और हमारा जो accountability है वो कहाँ से flow हो रहा है, bottom से top तक। So if you are doing BCom, you will be at the bottom level. You will be accountable for all the things. You have to do as per the top management. जो top management बताएगा आपको उसके हिसाब से orders follow करना है। BBA में you can land somewhere between middle and top. Not exactly in the middle as well, but you can land somewhere between BCom and middle and top. BBA is always better than BCom, I would say. BCom आप साथ साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो ही बीकॉम कीजिए, इट इज माय सजेशन, या तो फिर बहुत अच्छे कॉलेज से कीजिए। देन बीबीए में हम लोग मिडिल लेवल तक आ सकते हैं, पर BBA भी सिर्फ बैचलर्स डिग्री से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसके साथ साथ हमें कुछ ना कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आजकल BBA के साथ साथ बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस, BBM IB आ गया है, तो इंटरनेशनल बिजनेस जिनको करना है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का, दे कैन गो फॉर इट। दुबई में अभी बहुत सारे कोर्सेस ऐसे आ रहे हैं जो इंडियन यूनिवर्सिटी के BBA बीकॉम के ऊपर आपको वहां पे एडमिशन देते हैं, तो विच इज वेरी गुड नाउअडेज। देन द थर्ड थिंग जो बहुत अच्छा है, दैट इज जर्नलिज्म। हम लोग सोच नहीं, हमको लगता है जर्नलिज्म यानी आर्ट से होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बॉस। बैंक आपका जो जर्नलिज्म है वो आप बीकॉम से भी कर सकते हो, कॉमर्स से भी कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक कि जस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको करना है, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी जर्नलिज्म में कर सकते हो। आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन who has done his BCom MCom and then has entered into journalism. So journalism is one of the course जिसके लिए आपको कॉमर्स बैकग्राउंड है तो भी चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जर्नलिज्म में आपको सिर्फ आर्ट्स का बैकग्राउंड ही लगता है, यू नीड टू हैव दैट पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड एवरीथिंग। इट इज जर्नलिज्म में प्रेजेंटेशन इज अ पार्ट, there are many other things like gathering the information, many things, ethical readings and everything। तो ये जितनी भी चीजें ये सब जर्नलिज्म में आती है। तो जर्नलिज्म में presentation is just a part, so even if you lack that courage, even if you lack that presentation skill, you can still opt for journalism। then there is banking में आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हो, नॉर्मल बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं वो दे सकते हो। तो बैंकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस एंड ट्रस्ट मी, जितना जितना हम लोगों का इकोनॉमी बढ़ेगा उतना उतना बैंकिंग का जरूरत पड़ेगा, जितना डिजिटलाइजेशन होगा उतना ज्यादा बैंकिंग का जरूरत होगा। बैंकिंग में आप नॉर्मल बैंकिंग मत समझिए इसे कि हम कैश गए, कैश डिपॉजिट किया, कैश विड्रॉ किया, ये नॉर्मल बैंकिंग नहीं होता, ठीक है। बैंकिंग में
बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। उसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग कैसे करवाना है, ये सब चीजें आप लोग देख सकते हो। जितने भी स्टार्टअप्स है, वो स्टार्टअप्स को फंडिंग किस बेसिस पे मिलती है, ये सब चीजें हम लोग बैंकिंग के अंदर तो आ सकता है। तो नॉट जस्ट द मैकेनिकल पार्ट बट ऑल्सो द डीलिंग्स पार्ट उसके अंदर आ सकता है। मास मीडिया, जर्नलिज्म अगर इतना है तो मास मीडिया उसका पेरेंट है, तो मास मीडिया के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। देन बैचलर इन डिजाइनिंग, बैचलर इन डिजाइनिंग आपको कुछ डिजाइनिंग कोर्सेज करना है, फैशन डिजाइनिंग करना है, इंटीरियर कोर्सेज कुछ करना है, तो यस यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर द कॉमर्स बैकग्राउंड। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिजाइनिंग वगैरह के लिए हमको आर्ट्स ही लगता है, देर इज नो रिक्वायरमेंट एज सच। आप कॉमर्स में भी डिजाइनिंग कोर्सेज कर सकते हो एज अ ग्रेजुएशन पार्ट। अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज बहुत सारे हैं बैचलर्स इन डिजाइनिंग में, NIFD वगैरह जैसे इंस्टीट्यूट्स है, वो बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी हमको ऑफर करते हैं। एंड देन देर इज लॉ, तो फॉर ऑब्वियस रीजन यू कैन डू लॉ। लॉ भी बहुत अच्छा कोर्स है। उसके अंदर देर आर 2 टाइप्स, एक तो आप 3 years का कर सकते हो या 5 years का कर सकते हो। तो अगर आपको LLB प्लस LLM करना है तो यू कैन डायरेक्टली टेक लॉ आफ्टर 12th, तो आप 5 साल में LLM हो जाता है। नहीं तो आप अगर ग्रेजुएशन के बाद लेते हो, BCom के बाद LLB करना है तो आपको 3 साल लगेगा, तो वो 6 साल जाता है। तो लॉ इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कोर्स। एंड लॉ में भी हम लोगों को जो लगता है एडवोकेट रहेगा, वो कोर्ट में जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लॉ में यू कैन प्रैक्टिस इनटू कॉमर्स फील्ड। आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, लॉयर की फर्म्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को, टाटा हो गए, रिलायंस हो गए, इन लोगों के पैनल पे इन लोगों को टैक्सेशन के लॉ से रिलेटेड उनको कंसल्ट करते हैं। तो टैक्सेशन के जो भी लॉज है उनको कैसे इंटरप्रेट करना है, उसको कैसे हमको एग्जीक्यूट करना है, हाउ वी कैन यूज इट टू अवर बेनिफिट, ये सब चीजें भी आती है। तो लॉ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग उधर गए कोर्ट में हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं माय लॉर्ड ऐसा है, माय लॉर्ड वैसा है, नहीं। लॉ में you can actually consult various companies, you can consult them on copyright issues, you can consult them on taxation issues as well। बड़ी बड़ी कंपनीज के जो केसेस है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा लॉयर्स हैंडल करते हैं, दो इट इज रिलेटेड टू टैक्स, बट स्टिल बड़ी बड़ी कंपनीज के केसेस लॉयर्स ज्यादा हैंडल करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको असेसमेंट तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अपील्स तक जाएगा, उसके बाद में अगर कोई भी केस लेके जाना है तो लॉयर ही लेके जाता है। तो देर आर मैनी बिग लॉ फर्म्स who what you can say who advise the big companies on what can be done, what cannot be done, will this case go against them or will this case go in favor of them, can they take the risk or not, so all the things. So this were about the undergraduate courses. There are many other undergraduate courses as well, ठीक है, सिर्फ यही undergraduate courses नहीं, और भी बहुत सारे हैं, but these are some of the mainstream undergraduate courses जो लोग prefer करते हैं 12th के बाद करने के लिए। बेसिकली BCom को अगर मुझे लेना है तो BCom के साथ आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे और कुछ तो करना ही पड़ेगा। BBA के साथ भी सेम केस है। जर्नलिज्म you may or you may not require for a postgraduate degree, banking you not require for a postgraduate degree, but आपको उसके साथ BCom करना ही पड़ेगा, एक ग्रेजुएट डिग्री आपको लेनी ही पड़ेगी। मास मीडिया सेम, बैचलर इन डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग तो पूरा ही आपका अलग फील्ड हो जाएगा, but yes you can opt for bachelor in designing on the basis of your 12th commerce and law. Now next is integrated or postgraduate courses. What are the integrated postgraduate courses? तो जैसे BBA के साथ MBA कर लिया 3+2, BCom के साथ MCom कर लिया 3+2, LLB के साथ LLM कर दिया 3+2, MBCom के साथ LLB कर दिया। तो ये जितने भी कोर्सेस है ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में भी आ सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक डूइंग द मास्टर्स, एक बैचलर्स के बाद यू आर डूइंग द मास्टर्स। आई वुड स्टिल रीइटरेट, MBA के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट सिर्फ BBA करके कोई फायदा नहीं है। MBA, डू इट फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज, you may land a package in lakhs and crores of rupees. MBA you are doing from some ABC college, you may not even get
3 to 4 lakhs rupees per year का पैकेज. So BBA, MBA, do it from a good college. MBA में you can specialize in many things, HR, marketing, finance. तो MBA में बहुत सारी चीजें जिसके अंदर आप स्पेशलाइज कर सकते हो. पर्सनली सिंस आई लव नंबर्स, अगर मुझे कोई बोलता है तो मैं MBA इन फाइनेंस बोलूंगा, क्योंकि उसका जो स्कोप है वो हर जगह है. जितना लोग बढ़ेंगे, जितना बिजनेसेस बढ़ेगा, उतना MBA फाइनेंस का स्कोप बढ़ेगा ही. बट पैसा मार्केटिंग में ज्यादा रहता है. तो ये बहुत सारी चीजें हैं. यू नेवर नो हाउ यू वर्क. द अल्टीमेट थिंग विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज गो वेयर योर हार्ट गोज. आपको जो आपका दिल बोलता है या बच्चे का जो दिल बोलता है, आप वो देखिए, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट हम लोग नहीं कर पाते. अगर किसी मूवी में हमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो हम चैनल चेंज कर देते. सिमिलरली हमारे साथ होता है कि अगर हमको किसी कोर्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो हम हमारे जो पोटेंशियल है उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं. सो डिस्कस विथ योर किड्स. इफ देयर आर स्टूडेंट्स इन हियर, देन डिस्कस विथ योर पेरेंट्स what is your liking, what you do not like, but please be transparent in your approach. जितना ट्रांसपेरेंसी रहेगा आपको उतना ज्यादा फायदा होगा इस चीज के बारे में. तो दिस वेर द सम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स. पोस्ट ग्रेजुएट करना बहुत जरूरी है. इफ यू आर डूइंग प्लेन बीकॉम, कोई फायदा नहीं है दोस्त. उसके साथ एमकॉम करो. एमकॉम के बाद भली और कोई भी कोर्स करो, बट यस प्लीज पोस्ट ग्रेजुएशन करो. एटलीस्ट बीकॉम से तो बेटर. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बीकॉम एमकॉम बहुत अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट सिर्फ बीकॉम से बेटर है एमकॉम. बीबीए एमबीए कीजिए. एमबीए में आप बहुत सारी जगह पे आप एमबीए कर सकते हो. एक एमबीए इन लॉजिस्टिक्स करके है, विच इज द मोस्ट व्हाट यू कैन से विच इज द मोस्ट हॉट एज ऑफ नाउ. तो एमबीए इन लॉजिस्टिक्स क्या है एक्चुअली? एमबीए इन लॉजिस्टिक्स इज मैनेजमेंट ऑफ द लॉजिस्टिक. जितना ई कॉमर्स बढ़ रहा है उसको लॉजिस्टिक्स लगता है. डिलीवरी कब करनी चाहिए, कितने दिन में डिलीवरी पहुंचेगी, कौन से पैकेजेस कौन से इसमें जाएंगे, कहाँ पे हम लोग हमारा पेट्रोल सेव कर पाएंगे. ये बहुत सारी चीजें जो एमबीए इन लॉजिस्टिक्स में होती है. तो एमबीए इन लॉजिस्टिक्स में हम लोग कुछ कर सकते हैं. ये भी एक अच्छा कोर्स है. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम लोग देखते हैं कि कॉमर्स अगर कोई लेता है तो वो ऑलमोस्ट ये प्रोफेशनल कोर्सेस करने के लिए लेता है. हमारे यहाँ पे 3 मेजर प्रोफेशनल कोर्सेस है: चार्टर अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट. इन इंडिया वी हैव दिस 3 मेजर कोर्सेस. हमारे इंडिया में ये 3 मेजर कोर्सेस है. हम लोग इन तीनों के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं. बट समहाउ अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि सिर्फ ये 3 कोर्सेस नहीं है यार, ये 3 कोर्सेस के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस है जो हम कर सकते हैं, जो इक्वली डिफिकल्ट है बट उनका रिकॉग्निशन ज्यादा है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से बात कीजिए, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपके लिए 3 लेवल्स रहेगी: एक सीए फाउंडेशन, एक इंटर और एक सीए फाइनल. फाउंडेशन में आपको 4 पेपर रहेंगे, इंटर में आपको 8 और फाइनल में आपको 8. 4-4 के 2 ग्रुप रहते हैं फाइनल और इंटर में. तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपका जाता है ऑलमोस्ट 5 इयर्स का. आप 12th पास करते हो. 12th पास करने के बाद आप सीए फाउंडेशन देते हो. सीए फाउंडेशन के बाद आप इंटर देते हो. इंटर में 2 ग्रुप रहते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, 4-4 पेपर के. आप अगर ग्रुप 1 क्लियर हो जाओगे तो भी आपको आर्टिकलशिप मिलेगा, ग्रुप 2 क्लियर हो जाओगे तो भी आर्टिकलशिप मिलेगा. आर्टिकलशिप यू हैव टू डू इट फॉर 3 इयर्स. आपको 3 साल के लिए आर्टिकलशिप करना मैंडेटरी है. ये 3 साल के लिए आप आर्टिकलशिप कीजिए, उसके बाद आप फाइनल दीजिए. सीए फाइनल में भी देयर आर 2 ग्रुप्स, 4-4 ईच. दोनों ग्रुप निकलने के बाद ही आप सीए कहलाओगे. अगर आप सीए फाइनल तक करते हो, फाइनल में आप नहीं कर पा रहे हो क्लियर, तो उसका जो हम लोग बोल सकते हैं ना बेनिफिट, वो इतना नहीं रहेगा. बट ट्रस्ट मी, सीए इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट कोर्सेज. मैंने मेरा सीए जो था वो ऑलमोस्ट आई गेस, अगर मैं मेरा पूरा मिला लूं, मेरा पूना में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, पूना में क्लासेस का खर्चा, उसके बाद में सीए की एग्जाम फीस का खर्चा, ये सब चीजें अगर मैं मिला लूं
तो मेरा पूरा सीए 2 से 2.5 लाख में हो गया था। उसमें भी आर्टिकलशिप में मुझे पैसा मिलना शुरू हो गया था। आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड मिलता है हमें, ठीक है, 3000, 4000, 5000, और अभी तो स्टाइपेंड बढ़ भी गया है। तो वो ऑलरेडी पैसा मुझे वापस मिलने लग गया था। तो सीए इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट कोर्स। सीए इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, नो प्रोफेशनल कोर्स इज डिफिकल्ट। व्हाट यू शुड डू इज यू शुड स्टडी विद डिसिप्लिन। सीए के लिए हमको एक मिसकंसेप्शन है कि हमको मैथ्स आना बहुत जरूरी है। नो, नॉट एट ऑल। मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था। पर्सनल लेवल पे मैं खुद सीए नहीं लेने वाला था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैथ्स बहुत जरूरी है। बट देन आई मेट अ करियर काउंसलर एंड उन्होंने मुझे बताया कि मैथ्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सीए में। सो दैट वाज हाउ मेरा मिसकंसेप्शन क्लियर हुआ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैथ्स का कोई जरूरत ही नहीं है। जो डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन पढ़ा वो सिर्फ फाउंडेशन लेवल तक है। बाद में you have the calculator, you have the formulas, you have to just calculate and you don't have to do anything. मैथ्स का सीए में कोई भी ताल्लुकात नहीं है। So if you love numbers, if you love checking the mistakes of others, and if you love the presentations कि मुझे presentation देने बड़े बड़े, so yes you can do CA. You will land at the CFO level. आप CFO लेवल पे रह सकते हो, फाइनेंस मैनेजर रह सकते हो, टैक्सेशन मैनेजर रह सकते हो। इफ यू आर डूइंग द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आप कहीं पे भी रह सकते हो उस केस में। सो मोस्टली एक लेवल के बाद आप CFO तक बन ही जाते हो। एंड मैनी बिग कंपनीज इन इंडिया कंसिडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर अ CFO लेवल। कि the person should be a chartered accountant, it would be a better. So that is how चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 3 एग्जाम्स रहेंगे, एक सीए फाउंडेशन, एक सीए इंटर, एक सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन में 4 पेपर रहेंगे। उसके अंदर से यू हैव टू स्कोर मिनिमम 50% एंड हर पेपर में पास होना जरूरी है। दैट इज 40% हर पेपर में आना वो भी जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सेक्रेटरी में भी रहेंगे। कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? तो कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसके थ्रू हमें कोर्स मिलता है। ये इट इज ऑल रिलेटेड टू द लाइसेंसिंग ऑफ योर कंपनी। कंपनी का चीफ लाइसेंसिंग अगर कोई करता है तो वो कंपनी सेक्रेटरी। शेयर होल्डर्स से बात करना, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहुंचाना, शेयर होल्डर्स को कुछ भी इशू है उनके सॉल्व करना, कंपनी के रिटर्न्स फाइल करना, जो भी एनुअल रिटर्न्स वगैरह रहते हैं कॉर्पोरेट एमसीए की साइट पे, वो सब कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो कंपनी सेक्रेटरी इज चीफ लाइसेंसिंग ऑफिसर ऑफ योर कंपनी, जो आपके बिहाफ पे आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करके ये करता है। कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो प्रोफेशनल कोर्स। उसके भी 3 चीजें रहती है, 3 एग्जाम्स रहती है जो हमें पास करनी है, एंड देन ओनली वी कैन बी कॉल्ड एज अ सीएस। बट सीएस में कॉम्बिनेशन लॉ प्लस सीएस का बहुत अच्छा हो सकता है। सीएस में देयर आर मेनी टॉपिक्स विच आर थ्योरी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे, बहुत सारे चैप्टर ऐसे जो थ्योरी में है। तो इफ यू आर वीक एट थ्योरी एंड इफ यू आर गुड एट नंबर्स, go for chartered accountancy. If you are very good at theory but weak at numbers, you can go for company secretary. कंपनी सेक्रेटरी में अलग अलग टाइप्स की आपको थ्योरी रहेगी, अलग अलग लॉज रहेंगे, जैसे लेबर लॉज रहता है, उसके बाद में बहुत सारी चीजें रहती है। तो ये सब कंपनी सेक्रेटरी में आएगी। तो अगर इफ यू हैव द स्ट्रॉन्ग थ्योरी पार्ट, यस यू कैन गो फॉर कंपनी सेक्रेटरी। देन कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट इज बेसिकली कि आपके जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरे पास अगर एक कोई चीज पड़ी, लेट्स से ये स्टेपलर, तो ये स्टेपलर मेरे को 1 यूनिट कितने में पड़ रहा है? 10 रुपया, 8 रुपया, मेरे को घर में कितना पड़ रहा है ताकि मैं उसको बेचूं। दैट इज द कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट आपकी हर कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है। ही हेल्प्स यू इन डिफाइनिंग द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। ना सिर्फ कि हाँ 10 रुपए का मटेरियल आया और 2 रुपए का ओवरहेड या 12 रुपया हो गया कॉस्ट, ऐसा नहीं। ही कंसिडर्स ऑल द कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटेंट इज पैरेलल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ऑफ नाउ। बहुत अगर कॉस्ट अकाउंटेंट को ऑडिट का साइनिंग का अथॉरिटी दे दिया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो कॉस्ट अकाउंटेंट में कोई फर्क नहीं रहेगा। सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, 90% सिमिलर है। कॉस्ट अकाउंटेंट को थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को उतना कैलकुलेशन नहीं है। बट यस, अगर कॉस्ट अकाउंटेंट को साइनिंग अथॉरिटी दे देती है गवर्नमेंट,
तो कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में ज्यादा फर्क नहीं बचेगा, इट वुड बी जस्ट सिमिलर कोर्सेज। सो कॉस्ट अकाउंटेंट भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट हर कंपनी में रहती है, एंड देयर आर मेनी कंपनीज जिनको कॉस्ट ऑडिट करना मैंडेटरी है, डिपेंडिंग अपॉन देयर टर्नओवर, उनको कॉस्ट ऑडिट करवाना मैंडेटरी रहता है। सो दैट्स वेयर द कॉस्ट अकाउंटेंट कम्स इनटू द पिक्चर। सो यस, कॉस्ट अकाउंटेंट भी बहुत नेसेसरी है। नाउ लेट अस गो, ये हो गए इंडियन कोर्सेस। ये इंडिया में इनको कॉमर्स के त्रिदेव बोलते हैं हम लोग, कि ये 3 प्रोफेशनल कोर्सेस है, और क्या चाहिए। अगर बच्चा कॉमर्स ले रहा है, अगर उसको कुछ अच्छा कोर्स करना है तो या तो सीए कर ले, सीएस कर ले, या कॉस्ट अकाउंटिंग कर ले, इसके अलावा क्या। बट इसके अलावा अभी बहुत सारे कोर्सेस है जो हम लोग कर सकते हैं, दैट इज सीएफए। सीएफए इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कोर्सेस यू कैन से। एक एक एग्जाम इसका 70,000 60,000 रुपीज का जाता है। तो अगर आप सीएफए के 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और सीएफए के जो एग्जाम्स है वो स्पेसिफिक सिटीज में ही होते हैं। इट इज अ यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट। वो यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट आपकी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। सीएफए में देयर आर 3 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एंड each exam cost you around 70 to 80,000 रजिस्ट्रेशन फीस एक्स्ट्रा। बट सीएफए का जो स्कोप है, अगर सीए को स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख मिल रही है, सीएफए को स्टार्टिंग सैलरी 9 to 12 लाख मिलेगा, और हो सकता है उससे भी ज्यादा। सीएफए मोस्टली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत काम आता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी बोल सकते हैं आप लोग, उस केस में बहुत ज्यादा काम आता है सीएफए। सीएफए का मेजर जो है, यू कैन हैव योर ओन इन्वेस्टमेंट फर्म, यू कैन मैनेज पोर्टफोलियोज ऑफ पीपल, और एल्स यू कैन वर्क फॉर समवन। तो सीएफए वहाँ पे बहुत यूज आता है। सीएफए इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड थिंग। तो इवन दो इफ यू आर प्लानिंग टू लीव इंडिया एंड यू आर अ सीएफए, यू विल गेट अ जॉब एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे सीए अगर आप इंडिया में कर लो, नॉट नेसेसरी कि आपको हर जगह ही जॉब मिले, बट CFA if you are doing, you will get job anywhere in the world. Now the upcoming field is ACCA. ACCA आप आपके बीकॉम के साथ भी कर सकते हो। तो ACCA is nothing but आप लोग बोल सकते हो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटेंट्स। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड जो आपका फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क में आपको जो मल्टीनेशनल्स को उनके स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ते हैं, वो अगर ACCA के थ्रू बनवा लेते हैं। ACCA is a globally recognized। ACCA and CA most probably अभी सेम ही चल रहे हैं। ACCA में भी आपको स्टार्टिंग सैलरी 60,000 पर मंथ के हिसाब से मिल जाती है, 50,000 to 60,000। दैट इज ACCA। ACCA में आप ओन प्रैक्टिस का स्कोप थोड़ा कम है, यू विल नीड टू हैव गुड कनेक्ट्स फॉर दैट। सो ACCA में आप थोड़ा सा स्टार्ट में हो सकता है कि आप क्लाइंट्स के लिए स्ट्रगल करो इफ यू आर प्लानिंग फॉर ओन प्रैक्टिस। बट ACCA इज ऑल्सो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, और आप कहीं पे भी चले जाओ, लेट्स से आपको कनाडा जाना है या फिर आपको यूके जाना है, आप अगर ACCA हो तो यू कैन गेट अ जॉब, यू कैन गेट अ जॉब ओवर देयर एज वेल। एंड देयर इज CPA। CPA इज नथिंग बट अ USA का चार्टर्ड अकाउंट। तो वहाँ का अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो यस, यू कैन हैंडल द मल्टीनेशनल कंपनीज फ्रॉम हियर, you can get a job there as well। It is a globally recognized course which will help you a lot। So these are the professional courses जो हम कर सकते हैं। इसके साथ एक और कोर्स है जो है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरी जो हम लोग बोलते हैं, इट इज बेसिकली जिनको मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है उनके लिए है। एंड एक्चुरी इंडिया में आर इन थाउजेंड्स ओनली, एंड लेस देन 25,000 आई वुड से। एक्चुअली का काम क्या होता है कि आपको जो इंश्योरेंस कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, वो आपको वो फॉर्म करके देता है एक्चुअली, कि अगर आप 10,000 रुपये हर साल डाल रहे हो तो आपको क्लाइंट को कितना देना है। सो आप लोग समझ सकते हो कि स्कोप कितना है एक्चुअली का। एक्चुअली में मैथ्स बहुत जरूरी है। यू नीड टू स्कोर मिनिमम 85% इन मैथमेटिक्स इन स्टैंडर्ड 12th टू हैव टू अपीयर फॉर एक्चुरियल एग्जाम्स। अगर आपको 100 में से 84 है, 83 है, यू कैन नॉट अपीयर फॉर एक्चुअल एग्जाम्स। तो एक्चुअरीज जो है ये वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन से मोस्ट प्रॉफिटेबल जॉब्स फ्रॉम कॉमर्स। आपका जो पैकेज रहेगा वो लाखों में ही रहेगा।
एक्चुअली में जितनी भी एग्जाम्स है, इवन इफ यू क्लियर हाफ ऑफ देम, यू विल गेट अ हैंडसम पैकेज। इसके बाद में आप इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ कर सकते हो, इफ यू आर डूइंग समथिंग इन इकोनॉमिक्स, तो यस वो भी बहुत अच्छा आपको रहेगा। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स आप देख सकते हो, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। सो दिस वेर सम कोर्सेस, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेस है। प्रोफेशनल कोर्सेस के साथ साथ आप ग्रेजुएट कोर्सेस कोई से भी कर सकते हो। बीकॉम ले लीजिए, बीबीए ले लीजिए, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप कर सकते हो। नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी एलएलबी करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स बीकॉम करते हैं, सीए बीकॉम करते हैं, सीएफए मोस्टली लोग ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। एक और चीज की अभी कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आप बीकॉम के बाद कर सकते हो। यू नीड नॉट क्लियर द सीए फाउंडेशन और फाउंडेशन थिंग्स, आप डायरेक्टली बीकॉम के बाद वो चीज कर सकते हो। तो दिस इज हाउ द courses are designed as of now. So I guess that is my time. If you have any queries, we have left 15 minutes slot for the queries. So if you have any Hello. queries, yes. Hello, sir. Hello. Yeah. Yes, Dr. Navneet, please tell me. Yeah. My daughter is doing now second POC now. Whether BBA will also be eligible to do the company secretary or even the first three of the professional courses? BBA, I doubt, because they are giving admission on the BCom basis, minimum 60% in BCom. BBA, I doubt. I would just need to check if there is bachelor in commerce or any bachelor's degree. I would have to check that. All right. And as far as the globally recognized CFA, ACCA, and CPA are concerned, I think they don't have any parallel requirements of completion of degrees, right? Like no. They don't have any parallel requirement of completion of degrees. And I have seen a little bit of trend like ACCA people do, and after that they will do CFA. So doing priority of ACCA first is quite comfortable, right? Yeah, ACCA is quite easy compared to CFA. And once you do ACCA, you get a job like that where CFA is also required. So basically, most of the companies also sponsor the CFA thing. You do the CFA. So that is why the people do ACCA and then CFA. FRM also company can sponsor. Because the individual practice, as you were telling, people want, I mean, people will be more free to do individual practice in case of CFA than people will be more flexible to do CFA individual practice rather than ACCA, because CFA has a huge scope. That's why. Okay, thank you, sir. Yeah, welcome. So, is any other queries? Hello, sir. Yeah, please, ma'am. My name is Priyanka Date. I have one question. I don't know whether it is relevant to this or something else. Actually, my daughter is in 10th grade right now. She is going to give her board exams month end. So we are looking for commerce stream for her. But many parents, I heard, they have already taken admissions for 11th grade of CBSE board. So now my question is, are there any, or we can say like in their portion or in the studies, is CBSE board is so much different from SSE board for junior college? Yes, CBSE board is quite huge volume wise, and the things that state board has in 11th, some of the chapters CBSE board has in state board has in 12th, some of the chapters CBSE board has in 11th itself. CBSE का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है। लाइक अगर आप अकाउंट्स का देखते हो तो CBSE में अकाउंट्स के 3 वॉल्यूम आते हैं। वहीं पे अगर हम स्टेट बोर्ड अगर लेते हैं तो स्टेट बोर्ड में हमारा एक 300-400 पेजेस का जो बुक है उसके अंदर ही पूरा कोर्स आ जाता है।
स्टेट बोर्ड में थोड़ा ऊपर ऊपर से है सब चीजें, सीबीएसई में थोड़ा डिटेल में है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको आगे कुछ कोर्सेस पे. Okay. So it will just make the things easier. Like for example, अगर आप CA फाउंडेशन करना चाहते हो and you are taking the state board, तो उसमें आपको ऐसा कोई ये नहीं कि CA फाउंडेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा. It is just like थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. और CBSE भी अगर आप लेते हो तो स्टेट बोर्ड CBSE और CA फाउंडेशन का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो उसके अंदर उनका स्कूल के हिसाब से ही हो जाता है. एंड स्टेट बोर्ड में यू हैव कॉलेज, सो आप अटेंड करो नहीं करो आपकी मर्जी रहती है. बोथ कॉलेजेस आर वेरी lenient on the this thing attendance part, but in CBSE you have the school, तो स्कूल में आपको प्रॉपर अटेंडेंस वगैरह देना ही पड़ता है. बट इट वोंट मेक एनी डिफरेंस कि बच्चा स्टेट से पढ़े कि CBSE से पढ़े, सिर्फ CBSE में थोड़ा पढ़ाई ज्यादा है, स्टेट में थोड़ा कम. ओके. एंड 12th ग्रेड में तो आई थिंक सभी बोर्ड सेम लेवल पे आ जाते हैं ना, लाइक फॉर नेक्स्ट एडमिशन देयर वोंट बी एनी डिफरेंस ना? नो, देयर वोंट बी एनी डिफरेंस, बट जो एडमिशन का लिस्ट रहता है कॉलेजेस का वो बोर्ड के हिसाब से लगता है. CBSE बोर्ड का अलग लगेगा, स्टेट बोर्ड का अलग लगेगा. ओह ओके, थैंक यू सर. वेलकम. एनी अदर क्वेरीज? Sir, again, Navneet here again this side. Yes. Please tell me, sir. Sir, there are some colleges in India for BCom banking specialization. Okay. Like in Mangalore, there was a BCom specialization from Canara Bank Institute of Commerce. Yes. So whether in Pune, BCom banking courses are there in Symbiosis or even in Pune University or somewhere else? Sir, I doubt whether in Pune we have such colleges. I seriously doubt, because as of now I haven't come across. But maybe because there is lack of awareness regarding it. So I will just confirm. I'll just check. I have some connects in Pune University. So I will just check with them if we have any colleges like that. And earlier generation, that CA IIB courses, whether a person has to start working in the bank, these private banks, or the CA IIB can be even done by the students like these professional courses? It can be done by the students like these professional courses. So that won't be an issue. Just one more thing. I just forward one slide. So there were some employability skill courses, like there are many people who do BCom, BBA and everything. तो उसके साथ साथ में भी अगर हमें कुछ करना है तो you can do Tally crash course, GST crash course, taxation and Microsoft Office crash courses. So you can learn and earn at the same time. So the child keeps busy and gets a hands-on knowledge on the practical things. So these are some of the crash courses which are offered by many institutes in and around Pune. In every area you will find one such institute. Out of this, which one you suggest? Like Tally is the top priority. Yeah, I would suggest basically I would suggest diploma courses in all this thing. It is almost 3 to 9 months ka course. So they teach Tally, they teach GST, they teach taxation, and they teach Microsoft Office courses as well. So just like what is the syllabus of CA Inter, they teach everything in it. So this can also be done while going for the graduate courses. Whether this new trend of analytics is entering into commerce field also? Yes. See, nowadays analysis is something you will find in every discussion. Because it is a growing trend, and the students are getting influenced a lot with social media. And if you see the social media, every third or fourth post will be about all the analysis, just not only this thing shares, but also the cryptocurrencies and everything. So it is growing.
When I went through this NSE courses, there are so many courses we find it difficult Yes. to. In fact, NSC is offering a MBA course. I see. NSC itself is offering a MBA course. It is offline plus online, and it is on weekends only. So into the stocks, they are offering this into the stock market. So yes, there are many courses, but what I would suggest is you can learn from the internet itself. जितना भी चीज है, start with 10,000, 15,000. Give the money to the student. Tell him to invest. Tell him to invest as per his after gathering all the knowledge, and I would make sure that he will be interested in it lifelong. So you don't have to go for a proper, let's say, proper course for that. Yes, sir. Because it is something you can earn passively as well. So yeah, because yesterday only I think UGC has already allowed two courses parallelly that can be. Yes. Yesterday only they told that you can pair for graduate and postgraduate courses parallelly. That is how it is. And there is very thin layer of difference between postgraduate or undergraduate. They want just a degree or something which is combined, like integrated as you are focusing on. So exactly. UG and PG differences are getting reduced, I suppose, because of the very much. In fact, it is just 90:10 ratio. Like whatever you have studied, 90%, just 10% will be in the post graduation. That is how it is. So I have. Thank you, sir. Thank you. Yeah, welcome. I have a Shubham, question. there's yeah. You saw that, yeah. Please. Yes. So can you suggest good colleges and classes for commerce graduation? Yes. In Pune, there are many good colleges. You have Bihar Maharashtra College of Commerce, BMCC. Then you have Symbiosis. Symbiosis is the autonomous university. It offers you ACCA as well. So while appearing for BCom, you can also do ACCA from Symbiosis itself. And regarding classes, yes, you have many classes in Pune. If you are searching in PCMC area, I have my own classes in PCMC area. But if you are searching in PMC area, Pune, then for CA Foundation, you have Expert Academy, Ekatvam Academy. For BCom, you have ambitious classes in this, I guess, Vanavri or something. Vanwadi, I don't know, on the Satara Road. And for BCom, you have Agrawal classes as well. So there are many good classes in PMC area. So colleges, basically, yes, MIT is also good. BMCC is one of the top colleges in Pune. And then there is Symbiosis. Symbiosis is an autonomous university. So you will get the certificate from Symbiosis University, not from the Pune University. MIT is a Pune University, and BMCC is also into Pune University. So it was for 11th, 12th, right? This thing, colleges, or you need post-graduation colleges? 11th, 12th, sir. 11th, 12th, yeah. 11th, 12th colleges, BMCC is good. And then there is Symbiosis. I would especially suggest Symbiosis because the overall development of the student is very good in Symbiosis because he gets to learn a lot of it and he can also appear for ACCA with it. So that is why. Thank you. Yeah. Shubham, there's one more question from the chat box. No commerce background, but as an entrepreneur, what are the minimum things I should master? Tally is one, I guess. Basically, yes, as an entrepreneur, if you have to master anything, you need a good hand on accounting. Not on the accounting software, but if you have a good hand on accounting, you just understand the basics of accounting, that would also be good. Because Tally is something you will find many people to operate. In fact, if you are doing a startup, I would suggest don't go for Tally, go for QuickBooks or Zoho Books because it is a cloud-based software. Tally has its own limitation. This QuickBooks and Zoho Books are cloud-based. They don't have any limitations and your data is secured as well. Then you can go for all the crash courses, GST, taxation. Just get the basic idea.
because as an entrepreneur, the main thing you have to concentrate is on management. The management is the main thing that you have to do. बाकी चीजें थोड़ा थोड़ा भी आए तो भी चलता है. Just understand, but yes, accounting and taxation का basic is very must. क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग का बेसिक नहीं आता है तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल गो हेवायर एंड आपको समझेगा ही नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है. एंड दूसरा, हम लोग कुछ बिजनेस डिसीजंस बिना टैक्सेशन को कंसिडर किए ले लेते हैं और उससे फिर हमें बहुत ज्यादा किकबैक्स आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट था, सो जीएसटी नया नया जीएसटी आई था 2017 में, एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ ऑफ फ्री सैंपल्स. एक एफएमसीजी जायंट है, उन्होंने 2 करोड़ रुपए के फ्री सैंपल्स बांट दिए लोगों में, और उन्होंने उसके ऊपर जीएसटी भरा ही नहीं क्योंकि उनको लगा उसके ऊपर जीएसटी भरने की जरूरत ही नहीं थी. एंड अल्टीमेटली अभी उनको 2022 जनवरी में उन लोगों को 36 lakhs टैक्स प्लस 18 lakhs कुछ पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट, ऐसा टोटल 64 lakhs का कुछ नोटिस आया है. सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिक्स ध्यान में होनी चाहिए कि एक तो आपको अकाउंट्स के बेसिक्स टू मेक श्योर दैट योर अकाउंटिंग इज अप टू डेट और योर अकाउंटिंग इज प्रॉपर, एंड दूसरा है कि टैक्सेशन के बेसिक्स. बिकॉज हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं, वी डोंट एवर कंसिडर टैक्स. टैक्स इज समथिंग दैट कम्स लास्ट इन आवर माइंड. तो टैक्स कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप अगर कुछ कॉस्टिंग भी कर रहे हो तो वो टैक्स आपके दिमाग में रहना ही चाहिए. सॉफ्टवेयर रन करने वाले बहुत मिल जाएंगे सर आपको, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जो कोर नॉलेज है कि क्या डेबिट होना चाहिए क्या क्रेडिट होना चाहिए, वो भी आ गया ना तो बहुत है. क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड डिवोट योर टाइम इन डेवलपिंग द बिजनेस. आप मैनेज करो, आप डेवलप करो बिजनेस को. आप एग्जीक्यूशन पार्ट में लगे रहोगे तो आप एग्जीक्यूट ही करते रह जाओगे, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा. बट यस, टैली आप, मैं पर्सनली बोलूँ तो टैली आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो. डाउनलोड अ फ्री वर्जन ऑफ टैली, एजुकेशनल वर्जन, यूट्यूब लगा लो, टैली आप सीख जाओगे. एनी अदर क्वेरीज? Okay, I think there are no more questions, and it was. I found it personally very enlightening. A lot of things I didn't know. Thank you, Shubham, for enlightening all of us. I hope that our participants also could learn, something that they didn't know already. And again, I would, urge you all to try and attend the other sessions that we are conducting